Welcome friends in my YouTube channel Easy Chemistry. My name is Dr. Sandeep Sharma. Today our topic is metals and non-metals. So important questions and answers. So you can also like, share and subscribe our channel. तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटल. फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं विच इज liquid at room temperature. The example is mercury. The mercury metal that exists in the liquid state at a room temperature. Next बात कर लेते हैं can be easily cut with a knife. तो metal, sodium metal, the metal that can be easily cut with a knife is a sodium example. Next बात कर लेते हैं is the best conductor of heat. तो example है silver. Silver metal, we can say that metal that is best conductor of heat is silver. Next बात करें is a poor conductor of heat. तो metal that can poor conductor of heat is mercury and lead. तो next question देख लेते हैं. You can see here explain the meanings of malleable and ductile. तो आंसर में देख लेते हैं. You can see here malleable means that a substance that can be beaten into the thin sheets are called the malleable. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द मेटल आर मेलेबल. तो मेलेबल मेटल्स क्या होती है, जब हम मेटल को बीट करते हैं तो वो एक थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. तो जैसे हम देख लेते हैं सिल्वर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, सिल्वर फॉइल. नेक्स्ट बात कर लेते हैं डक्टाइल. डक्टाइल नेचर. Ductile means that substance that can be drawn into the thin sheet are called the ductile. For example, most of the metal are ductile. Ductile means that example हमारा इवन 1 ग्राम गोल्ड वी कैन मेक 2 किलोमीटर लेंथी वायर ऑफ गोल्ड मेटल. नेक्स्ट इसके साथ साथ में बात कर लेते हैं कॉपर वायर वी मेक इट्स ऑल्सो सो द डक्टाइल नेचर. नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की define the following term minerals, ore and gangue. So what do you understand by the minerals? Minerals means that you can see the most of the element occur in the nature as in combined state as minerals. The chemical composition of mineral is fixed. तो बात कर लेते हैं जो माइन से हम निकालते हैं और निकालने के लिए, तो उसे बोलते हैं हम मिनरल्स. नेक्स्ट बात कर लेते हैं और. मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर नोन एज द ओर. तो और क्या होते हैं जिसमें हम जो है जिन मिनरल्स की हेल्प से हम मेटल अनरिप मेटल निकाल लेते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम ओर. नेक्स्ट बात कर लेते हैं गैंग. द इम्प्योरिटीज सैंड स्लिट सॉइल ग्रेवल एट्सेट्रा प्रेजेंट इन द ओर यू कैन सी हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ गैंग. तो इन द ओर आर कॉल्ड द गैंग. जो हमारी इम्प्योरिटीज सैंड सॉइल और ग्रेवल्स एट्सेट्रा प्रेजेंट होती हैं किसी भी ओर में तो वो हमारी कहलाते हैं गैंग. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइट द इक्वेशन फॉर द सब्सटेंस ऑफ आयरन विद स्टीम. नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर. तो यू कैन सी हियर Fe, when Fe react with water steam, it form the ferrous oxide and ferric oxide. तो Fe3O4 oxidation +2 and oxidation +3 plus hydrogen gas. नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैल्शियम when react with water it form the calcium hydroxide. It is a base, basic in nature. नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइड्रोजन प्लस हीट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यू कैन सी हियर you can see here potassium. When potassium react with water or calcium react with water it form the calcium hydroxide or potassium hydroxide plus hydrogen plus heat. नेक्स्ट देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सैंपल ऑफ द 4 metals A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one. The result obtained had been tabulated as follow. तो यहाँ पर रिएक्शंस देख लेंगे. फर्स्ट के साथ रिएक्शन क्या, आयरन सेकंड सल्फेट, कॉपर सेकंड सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट. तो यहाँ पर रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट फिल किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है. और जिंक सल्फेट में नो रिएक्शन है. इसी तरह से देख सकते हैं सी और डी ऑप्शन में नो रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नो रिएक्शन.
तो with the help of the given chart we easily identify which is beneficial reaction or not. तो देख सकते हैं और how can we perform these reaction given reaction. तो use the table above the answer the following question about metal A B C D which is the most reactive metal. तो you know actually when explanation में देख लेते हैं when A react with FeSO4 ferrous sulfate तो कोई रिएक्शन नहीं है तो इट इज ए लेस रिएक्टिव देन आयरन. नेक्स्ट बात लगते हैं ए की रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट डिस्प्लेस होगा इट मीन्स ए इज ए मोर रिएक्टिव देन कॉपर. विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द गिवन ऑल. तो यू नो दिस इज यू कैन सी हियर इट इज ए रिएक्टिविटी सीरीज. तो यहाँ पे देख लेते हैं जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव एंड डी इज फ्रॉम हियर इज ए लेस रिएक्टिव. तो हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है हमारा लोअर रिएक्टिव को. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal. Write the chemical reaction with iron react with the dilute H2SO4. नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंदर आंसर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal. When iron react you can see here reacts with dilute H2SO4 iron sulfate with the evolution of the hydrogen gas. You can see here FeS react with sulfuric acid. When metal react with acid it forms salt plus hydrogen ferrous sulfate plus hydrogen. Next देख लेते हैं what would you observe when zinc is added to a solution of iron second sulfate. Write the chemical reaction that takes place. Next बात कर लेते हैं zinc is more reactive than iron, therefore if zinc is added to a solution of iron second sulfate then it would displace iron from the solution. तो Zn की रिएक्शन करी FeSO4 तो ZnSO4 प्लस Fe तो डिस्प्लेस हो जाएगा हाईली रिएक्टिव लोअर रिएक्टिव के साथ में. तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं. यू कैन सी हियर राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंदर शो द फॉर्मेशन ऑफ N2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड थर्ड वन लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं ये है व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट विद वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एज ए डॉट अराउंड द एलिमेंट इज रेफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन एलिमेंट. तो फॉर एग्जांपल आउटर मोस्ट सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो 2, 8 और 1 के सेल एल सेल और एम सेल में इस तरह से फिल करते हैं. तो आउटर मोस्ट सेल में हमारा 2 यू कैन सी हियर 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है के सेल एल सेल और एम. तो आउटर मोस्ट सेल को वैलेंसी शेल बोलते हैं और वैलेंसी शेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉट के विद द हेल्प ऑफ द डॉट. तो इसी तरह से सोडियम 1 डॉट से ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में 6 यू कैन सी हियर 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर तो 6 डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैग्नीशियम में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट में तो 2 डॉट लगा करके रिप्रेजेंट किया. तो विद द हेल्प ऑफ डॉट स्ट्रक्चर वी इजिली रिप्रेजेंट द आयन प्रेजेंट इन N2O or N positive and O2 negative ions and in magnesium MO or Mg 2 positive and oxygen 2 negative ions. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेम द मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट. तो फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो मेटल हाईली रिएक्टिव नहीं होती हैं बॉटम आती हैं रिएक्टिव सीरीज में तो वो किसी के साथ में नेचर में रिएक्ट नहीं करती और फ्री स्टेट में पाई जाती हैं. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं द मेटल एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट फाउंड इन अ फ्री स्टेट. फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं प्लैटिनम है सिल्वर है गोल्ड है तो ये हमारे हैं हमारे जो हमारी नेटिव स्टेट में मिलती हैं मेटल. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके साथ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन What chemical process is used for the obtaining a metal from it oxide. तो metal oxide से करते हैं इसका process देख लेते हैं. The chemical process used for the obtaining a metal from it oxide is reduction. In this process the metal oxide are reduced by the using suitable reducing agents such as the carbon
यू कैन सी हियर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है और हाईली रिएक्टिव मेटल टू डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड, कोई मेटल यहाँ पे जिंक है, ऑक्सीजन, व्हेन कोई एनी मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर जनरली यू नो बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो कार्बन के साथ में रिएक्ट हुआ, हीट करने पर हमारा Zn प्लस CO2। तो इसके साथ साथ में इससे अदर रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।